Good morning, children. Welcome to the psychology classroom. I hope you all are fine and everybody is fine at home. Children, as I always suggest you to work hard, so today in this video also my suggestion for you to work hard because very few days are left. It's not about a month now. Very few days are left for your board examination. So each and every day, each and every single minute is precious for you all. So try to understand and try to realize the importance of this one. Okay, you all have the capability, you all are capable, and I know that you all are able to achieve a very much success in your life and a very good score in your examination. So always keep the positivity in you. So with this positivity, I am going to start my topic. I am going to teach you about and as well as the revisions were going on. So in terms of the revision, I am doing the revision of the chapter Self and Personality, where the topic which I am going to teach you today is the type and trait approach to the study of personality. So this is our topic, type and trait approach. Type and trait approach to the study of personality. Okay, where we discuss about both the approaches, type approach also as well as trait approach. How they are have a role in the study of the personality. Personality की study में उनका क्या role है? How type and trait approach have their role in the study of the personality. So type and trait approach to the study of personality, where we will discuss about first one that I want to discuss with you that what is the difference between type and trait. ये जानना सबसे पहला important है आप सभी के लिए. The first point which we have to discuss about is the difference between type and trait. What is the difference between type and trait? So the answer of this question is the trait is a specific aspect of a personality and type is a broad aspect. ये एक तरह से नैरो एस्पेक्ट है पर्सनैलिटी का और ये ब्रॉड एस्पेक्ट है. ये स्पेसिफिक चीजों की बात करता है और ये आपके जनरल चीजों की बात करता है. ठीक है, ओके. सो नाउ व्हाट इज ट्रेट? ट्रेट मीन्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पर्सन. जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना पर्सन की, जैसे कि पर्सन इज शाई, some person is talkative, some person is like very bold, some person is very not able to share anything, very reserved. तो ये सारे कुछ क्या है, एट्रीब्यूट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उस पर्सन के. तो दैट इज मीन्स द ट्रेट, उसे हम ट्रेट कहेंगे. ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं पर्सन के, एट्रीब्यूट्स जो होते हैं पर्सन के, हम उन्हें ट्रेट कहेंगे. पर उन बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को मिलके अगर उनके लिए एक वर्ड हम लोग दे रहे हैं तो दैट इज नोन एज टाइप. फॉर एग्जाम्पल इंट्रोवर्ट. इंट्रोवर्ट क्या है? ये टाइप है. ठीक है. So I hope you all are understand about the difference between type and trait. So children, type is a broad aspect of a person's personality. Type talks about the general, whereas trait is the narrow aspect of a person's personality, and trait talks about the specific characteristic. The example which I am giving to you all is introvert. Introvert एक type है. इंट्रोवर्ट वर्ड जो ये वर्ड है इंट्रोवर्ट, इट इज अ टाइप बिकॉज इसमें ये एक तरह का ब्रॉड एस्पेक्ट है इंट्रोवर्ट, और इसमें कई सारे स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं और इसमें से कई सारे ट्रेट्स आते हैं. तो एक इंट्रोवर्ट में क्या क्या ट्रेट्स आते हैं?
जैसे कि इसमें आते हैं आपके इंट्रोवर्ट जो होते हैं वो लेस टॉकेटिव होते हैं, शाई होते हैं, रिजर्व्ड होते हैं, सोशली आउटगोइंग नहीं होते, उन्हें सोशली विड्रॉन होते हैं। तो ये सारे स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं जो इंट्रोवर्ट में आते हैं। तो इंट्रोवर्ट एक टाइप है और इंट्रोवर्ट के अंडर जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स आ रहे हैं वो क्या है, ट्रेट्स। So this is the difference between type and trait. So we are going to discuss about first one, the type approach to the study of personality. Type approach आप सभी से सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। Okay? In terms of the type approach to the study of personality, I hope this is clear difference between type and trait. Okay? So ये मालूम होना चाहिए था। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे व्हाट इज द टाइप अप्रोच। द टाइप अप्रोच, आउट ऑफ मेनी अप्रोच, टाइप अप्रोच इज ऑल्सो वन ऑफ द अप्रोच थ्रू विच वी कैन डू द स्टडी ऑफ द पर्सन्स पर्सनैलिटी। ये भी अप्रोच है जिससे कि हम पर्सन के पर्सनैलिटी को स्टडी कर सकते हैं। नाउ इसमें होता क्या है टाइप अप्रोच, तो डिफरेंट टाइप्स के बारे में डिस्कस किया गया है, डिफरेंट क्लासिफिकेशन है, जिसमें कि सबसे पहले आपके आते हैं ड्रिक, फिजिशियन, हिप्पोक्रेट्स। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपके आएंगे हिप्पोक्रेट्स का क्लासिफिकेशन है। इसमें आपको बहुत सारे क्लासिफिकेशन मिलेंगे, जिसमें सबसे पहला क्लासिफिकेशन है हिप्पोक्रेट्स का। हिप्पोक्रेट जो थे ये बहुत ही बड़े फिजिशियन थे, ठीक है, ग्रेट फिजिशियन थे ये। ओके, इन्होंने पर्सनालिटी को क्लासिफाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ फ्लूड और ह्यूमर। इन्होंने फ्लूड और ह्यूमर के बेसिस पे क्लासिफाइड किया था, फ्लूड एंड ह्यूमर। ठीक है, इसके बेसिस पे क्लासिफाइड किया था पर्सनालिटी को, फ्लूड एंड ह्यूमर। ठीक है, उन्होंने कहा कि पर्सन, ये फिजिशियन थे तो ऑब्वियसली वो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट की बात करते थे। फिजिशियन होने की वजह से वो सारे फिजिकल एस्पेक्ट्स की बात पे ज्यादा उनका एम्फेसाइज था। तो हिप्पोक्रेट्स ने कहा कि पर्सनालिटी जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पर्सन की पर्सनालिटी इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। ठीक है, कौन कौन से 4 पार्ट? द फर्स्ट वी टॉक अबाउट द सैंग्विन, ओके, सैंग्विन, then the phlegmatic, okay, and then the हिप्पोक्रेट्स ने कहा पर्सनालिटी जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सैंग्विन, फ्लेगमेटिक, मेलनकॉलिक एंड क्लोरिक। मेलनकॉलिक एंड क्लोरिक, ठीक है, कोलैरिक। ठीक है, इन्होंने बॉडी फ्लूइड्स और ह्यूमर के बेसिस पे पर्सनालिटी को क्लासिफाई किया था। सैंग्विन मीन्स द ब्लड, फ्लैगमेटिक इज मेड फ्रॉम द वर्ड फ्लैगम, एंड मेलनकॉलिक इज द ब्लैक बाइल एंड क्लोरिक इज द येलो बाइल। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि बॉडी फ्लूइड्स और ह्यूमर के बेसिस पे पर्सनालिटी हमारी क्लासिफाइड है। तो ये 4 टाइप्स इन्होंने टाइप अप्रोचेस में दिए। हिप्पोक्रेट्स के बाद आते हैं चरक संहिता ऑफ आयुर्वेदा। चरक संहिता आए, ओके, चरक संहिता जो थे वो आयुर्वेदा से रिलेटेड थे। चरक संहिता, उनका नाम ये है चरक संहिता। ओके, डोंट डू अ मिस्टेक इन दिस स्पेलिंग। चरक संहिता, ओके, ये आयुर्वेदा से रिलेटेड है। तो इन्होंने जो पीछे डिस्कशन किया, उन्होंने कुछ गुणास और दोषास की बात की। ठीक है, इन लोगों ने आयुर्वेदा में, यू कैन से दैट इन आयुर्वेदा द पर्सनालिटी इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ दोषास एंड गुणास। ठीक है, दोषास और गुणास के बेसिस पे क्लासिफाइड है। तो 3 दोषास और 3 गुणास की बात हुई है यहाँ पे। द फर्स्ट वन इज द 3 दोषास,
ओके, एंड त्रिगुणास, ठीक है। दोषास मीन्स आपके वक्त, पित्त और कफ की बात हो रही है, जो हमारे बॉडी से ही रिलेटेड होते हैं। और त्रिगुणास में 3 गुणास हैं, सत्व, रजस और तमस। ये 3 हैं, सत्व, रजस और तमस, ठीक है। वक्त, पित्त और कफ, उसके बाद है सत्व, रजस एंड तमस। तो ये आयुर्वेदा का क्लासिफिकेशन था पर्सनालिटी के लिए। वक्त, पित्त और कफ में सत्व, रजस, तमस में सत्व जो पर्सनालिटी है उसको सात्विक जो लोग होते हैं उनसे रिलेटेड माना गया। जो सात्विक होते हैं, सेंट्स होते हैं, तो बहुत ही डिटरमाइंड होते हैं, डेडिकेटेड उनकी पर्सनालिटी होती है, फोकस्ड होते हैं, सेंटर्ड होते हैं। रजस को राजा जो लोग होते हैं उनकी पर्सनालिटी से कोरिलेट किया गया है। तमस इज कम अंडर द कैटेगरी, और जैसे जो लीबर्स होते हैं तो दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, दे आर वेरी एनर्जेटिक। तो दीज आर सम ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनालिटी विच वॉज अटैच्ड टू इट। चरक संहिता ऑफ आयुर्वेदा के बाद क्लासिफिकेशन जो कि दी गई थी वो थी शेल्डन ने क्लासिफिकेशन अपनी दी थी। शेल्डन इज अ नेम ऑफ साइकोलॉजिस्ट। शेल्डन की क्लासिफिकेशन थी। शेल्डन ने भी पर्सनालिटी को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया था। व्हाट आर द कैटेगरीज? सो सबसे पहले उन्होंने 3 टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी बताया, मेसोमॉर्फिक, ओके, एंड एंडोमॉर्फिक, then come the ectomorphic. Mesomorphic, endomorphic and then come the ectomorphic. 3 personality types में इन्होंने बताया 3 categorization, mesomorphic, endomorphic and ectomorphic. ओके, इनकी अपनी अपनी कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पर्सनालिटी हैं। जो मेसोमॉर्फिक होते हैं, एम से बना है मसल्स, मस्कुलेचर, ये जो होती है इनकी पर्सनालिटी, दे आर वेरी बॉडी बिल्डर जो होते हैं, और दे वो वेरी टुक केयर ऑफ देयर हेल्थ, जो अपने हेल्थ को बहुत ध्यान रखते हैं, ये पर्सनालिटी आती है। और साइकोलॉजिकली इनकी पर्सनालिटी जो होती है, एनर्जेटिक होते हैं, करेजियस होते हैं। एंडोमॉर्फिक होते हैं जो फैट, सॉफ्ट एंड राउंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, फैटी पर्सन जो होते हैं वो एंडोमॉर्फिक होते हैं। और इनकी साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है कि वे बहुत ही रिलैक्स्ड होते हैं, बहुत ही सोशिएबल होते हैं, ठीक है। देन एक्टोमॉर्फिक आते हैं। एक्टोमॉर्फिक थिन पर्सनालिटी जो होती है, पतले से लंबे से होते हैं, थिन एंड टॉल, तो ये पर्सनालिटी एक्टोमॉर्फिक की होती है। वे लोग थोड़े इरिटेबल होते हैं, थोड़े टची होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। तो ये कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमने डिस्कस किया, और कुछ साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, शेल्डन के क्लासिफिकेशन के बाद 2 क्लासिफिकेशन हमें टाइप अप्रोच में पढ़ना है, वो है यून की। यून का क्लासिफिकेशन हमें पढ़ना है। यून ने भी 3 तरीके से पर्सनालिटी को डिस्क्राइब किया था। पहला है इंट्रोवर्ट, द फर्स्ट वन इज इंट्रोवर्ट, सेकेंड इज एक्सट्रोवर्ट एंड थर्ड इज एम्बीवर्ट। इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट एंड एम्बीवर्ट, इनका भी 3 क्लासिफिकेशन था पर्सनालिटी के टाइप्स का, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट। इंट्रोवर्ट पीपल वो लोग हैं जो बहुत ही आउटगोइंग नहीं होते, सोशली विड्रॉन होते हैं, रिजर्व्ड रहते हैं। अभी मैंने आप लोग से इंट्रोवर्ट पीपल्स की कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस भी किया था जब मैं टाइप और ट्रेट को डिफरेंस बता रही थी। उसके बाद है एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट जस्ट अपोजिट होते हैं इंट्रोवर्ट के। ये लोग में वो कैरेक्टरिस्टिक नहीं पाई जाती है जो इंट्रोवर्ट में पाई जाती है।
ये बहुत ही अपोजिट होते हैं एक्सट्रोवर्ट के। ये सोशली आउटगोइंग होते हैं, ये हैप्पी गो लकी इनके लिए फ्रेज बना हुआ है, और ये बहुत ही टॉकेटिव होते हैं, बहुत ओपन नेचर के होते हैं। दे कांट स्टॉप टॉकिंग, वे रुक नहीं सकते हैं, वो कंटिन्यूसली बोलते रहते हैं, और दे आर वेरी मच सोशिएबल। पार्टीज जाना, आउटिंग करना उनको बहुत पसंद होता है। इनके जस्ट अपोजिट एम्बीवर्ट होते हैं। एम्बीवर्ट जो ये पर्सनालिटी टाइप है, ये दोनों के बीच में आता है। ये जो पीपल होते हैं ये कुछ कुछ इंट्रोवर्ट होते हैं और कुछ कुछ एक्सट्रोवर्ट होते हैं। मीन्स इनमें दोनों क्वालिटी पाई जाती है। सम ऑफ द क्वालिटीज ऑफ इंट्रोवर्ट आर ऑल्सो फाउंड एंड सम ऑफ द क्वालिटीज ऑफ द एक्सट्रोवर्ट्स आर ऑल्सो फाउंड। तो ये था यून का क्लासिफिकेशन। So I hope I had discussed with you the classification of the Jung. So टाइप अप्रोच जब हम पढ़ते हैं तो टाइप अप्रोच में हमें बहुत सारी चीज़ पढ़नी होती हैं। हमने सबसे पहले हिप्पोक्रेट्स का क्लासिफिकेशन पढ़ना होता है, देन चरक संहिता का पढ़ना होता है आयुर्वेदा का, देन हिप्पोक्रेट्स के क्लासिफिकेशन के बाद शेल्डन का भी क्लासिफिकेशन है, देन यून का क्लासिफिकेशन है। यून के बाद भी क्लासिफिकेशन आया था जो कि फ्रीडमैन एंड रोजनमैन ने दिया था, ठीक है, जिन्होंने टाइप ए और टाइप बी पर्सनालिटी बताई। फ्रीडमैन एंड रोजनमैन भी साइकोलॉजिस्ट थे। सो रोजनमैन एंड फ्रीडमैन के भी क्लासिफिकेशन है टाइप अप्रोच में। रोजनमैन ये साइकोलॉजिस्ट का नाम है, रोजनमैन एंड फ्रीडमैन। इन्होंने भी दो टाइप बताए थे पर्सनालिटी के, रोजनमैन एंड फ्रीडमैन। इन्होंने दो तरह के जो टाइप बताए थे वो थे टाइप ए एंड टाइप बी। टाइप से ही उन्होंने नाम बताया रोजनमैन एंड फ्रीडमैन ने। Okay, first one is type A personality and second one is type B personality. इन्होंने कहा कि टाइप A पर्सनालिटी में जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो टाइप B में नहीं पाए जाते हैं। You can say that the type B personality is just opposite to the type A. जो भी कैरेक्टरिस्टिक टाइप A में मिलेंगे वो आपको टाइप B में नहीं मिलेंगे। जस्ट अपोजिट होता है टाइप ए के पर्सनालिटी से टाइप बी। जैसे टाइप ए वाले जो होते हैं ये बहुत ससेप्टेबल होते हैं सीएचडी के लिए, इनको बहुत जल्दी सीएचडी हो सकता है, यानी कोरोनरी हार्ट डिजीज। द फुल फॉर्म ऑफ सीएचडी इज कोरोनरी हार्ट डिजीज। कोरोनरी हार्ट डिजीज हार्ट प्रॉब्लम की, हार्ट इश्यूज, हार्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज इनको हो सकते हैं, ठीक है। दे आर वेरी मच ससेप्टेबल। यू कैन से दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस एंड द चांसेस इज मोर इन दैट। वाई इट इज सो? क्योंकि उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो कुछ इसी तरह की होती हैं। दे टेक अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, दे आर वेरी मच कंसर्न अबाउट द परफेक्शन। उनको हर एक चीज परफेक्ट चाहिए होती है। They are very much perfectionist. They are very much committed toward their work. जो वर्क वे लोग करते हैं उसके टूवर्ड वो कमिटेड होते हैं। जिस भी पर्टिकुलर टाइम पे वो कहते हैं कि I will submit it, so they will submit it. So this is all about. They are very energetic also. So उनके जस्ट अपोजिट जो होते हैं वो होते हैं टाइप बी। सो इसीलिए ऐसे पर्सन को एज दे आर टेकिंग लॉट ऑफ स्ट्रेस, एंजाइटी, सो दे आर ससेप्टेबल टू द हार्ट डिजीज। इसके बाद द लास्ट क्लासिफिकेशन विच कम अंडर द टाइप अप्रोच इज ऑफ मॉरिस। मॉरिस का सबसे लास्ट क्लासिफिकेशन है टाइप अप्रोच में, ठीक है। मॉरिस ने भी दो तरह के टाइप की बात की, द टाइप सी एंड टाइप डी, और दोनों के ही नाम से उनकी जो डिजीज उनको होने के चांसेस ज्यादा हैं वो रिफ्लेक्ट होते हैं। जैसे सी इज डिनोट फॉर द कैंसर एंड डी इज डिनोट फॉर द डिप्रेशन।
तो जो टाइप सी वाले पर्सनालिटी हैं उनको कैंसर होने के चांसेस बहुत देखे गए हैं, और जो टाइप डी पर्सनालिटी है उनको डिप्रेशन के चांसेस बहुत देखे गए हैं। ठीक है, दिस वन इज कैंसर, डिप्रेशन। नाउ टाइप सी जो पर्सनालिटी होती है दे आर वेरी मच assertive नहीं होते हैं, they are unable to say no to anyone, they are up to their mark, they are very much active in their work, जो भी करना होता है वो तुरंत करते हैं उसे। So this is all about the type approach to the study of personality. टाइप डी वाली जो पर्सनालिटी होते हैं दे वॉन्ट टू बी वेरी मच रिजर्व, इतना सोशली आउटगोइंग नहीं होते हैं, रिजर्व रहना चाहते हैं, अपने में रहते हैं, और दे easily don't share their things with other one. So that's why they are susceptible to a kind of depression also. So here we have completed the type approach to the study of personality, in which we have studied about the great physician Hippocrates, Charak Samhita of Ayurveda, then Sheldon classification, Jung classification, Rosenberg and Friedman classification, and lastly the Morris classification. Now we will study about the trait approach. तो डिस्कस करेंगे ट्रेट अप्रोच। टाइप अप्रोच हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब ट्रेट अप्रोच में जो वर्ड है ट्रेट के बारे में हम लोग ने समझ लिया है, जान लिया कि ट्रेट क्या है। ट्रेट मीन्स द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पर्सन्स पर्सनैलिटी। ट्रेट आर फाउंड टू बी रिलेटिवली स्टेबल एंड कंसिस्टेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये जो होता है ये स्टेबल होता है, ये वो एक्सपेक्ट होता है पर्सन के पर्सनालिटी का जो चेंज नहीं होता। इट डजंट चेंज विद द टाइम, इट डजंट इजली चेंज विद द टाइम एंड इट इज स्टेबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो ट्रेट जो होते हैं वो रिलेटिवली स्टेबल होते हैं और वो कंसिस्टेंट होते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ट्रेट्स को चेंज करना हार्ड होता है, इट इज नॉट सो इजी टू चेंज द ट्रेट ऑफ एनी पर्सन। ओके, ट्रेट्स की अगर हम बात करें तो इससे रिलेटेड भी कुछ थ्योरीज हैं जो पर्सनालिटी को स्टडी कराती हैं। क्या क्या थ्योरीज आती हैं ट्रेट में जो आपको पढ़नी है? द फर्स्ट वन इज द ऑलपोर्ट्स थ्योरी। इसमें ऑलपोर्ट्स की थ्योरी आपको पढ़नी है, ठीक है। द सेकेंड वन इज द कैटल्स थ्योरी, आपको कैटल्स की थ्योरी पढ़नी है। एंड द लास्ट वन इज द आइजन थ्योरी पढ़नी है। तो ये 3 बेसिक ट्रेट थ्योरीज हैं जो कि ट्रेट अप्रोच टू द स्टडी ऑफ पर्सनालिटी से रिलेटेड हैं, जिनमें सबसे पहले हम लोग ऑलपोर्ट की थ्योरी पढ़ेंगे, जिनका पूरा नाम है गॉर्डन ऑलपोर्ट। गॉर्डन ऑलपोर्ट ने भी कुछ ट्रेट्स बताए ऑब्वियसली, ठीक है। गॉर्डन ऑलपोर्ट इन्होंने 3 टाइप ऑफ ट्रेट्स के बारे में बताया। He talks about the 3 type of trait. The first one is cardinal, the second one is central, and the third one is secondary. He talked about the 3 types of trait: cardinal trait, central trait, and secondary trait. The cardinal traits are highly generalized disposition. They are highly generalized disposition. ये बहुत ही ज्यादा लोगों को दिखता है। ये वो ट्रेट होता है पर्सन की पर्सनालिटी का जो सभी को दिखता है। इट इज यूनिवर्सल, इट इज हाईली जनरलाइज्ड। लाइक फॉर एग्जाम्पल गांधीज नॉन वायलेंस, हिटलर नाजिज्म, तो ये सारी चीजें, मदर टेरेसा पीसफुल, तो ये सारी चीजें सभी को दिखी। इनके बाद सेंट्रल ट्रेट्स होते हैं, ये लिस्ट जनरलाइज्ड होते हैं, वो कार्डिनल ट्रेट से कम होते हैं बट सेकेंडरी ट्रेट से ज्यादा होते हैं, ठीक है। एंड दे आर, यू कांट से द लिस्ट जनरलाइज्ड, दे आर लेस जनरलाइज्ड, ठीक है, कम होते हैं, लेस जनरलाइज्ड होते हैं।
बट ये जो होते हैं दे आर लिस्ट जनरलाइज, ये बहुत ही कम लोगों को मालूम होते हैं। तो ऑलपोर्ट ने कहा, ऑलपोर्ट है डिस्कस अबाउट द 3 टाइप्स ऑफ ट्रेड, द कार्डिनल ट्रेड, द सेंट्रल ट्रेड एंड द सेकेंडरी ट्रेड। द कार्डिनल ट्रेड्स आर हाईली जनरलाइज्ड डिस्पोजिशन। Highly generalized disposition means highly generalized trade which is known to maximum people, which is known to everyone. Central trades are less generalized, कुछ लोगों को ही मालूम होते हैं, जैसे some of the special characteristics of your personality, like you are very hard working, you are very dedicated, you are very much committed toward any work. Okay, so that is those aspect of your personality which is less known to everyone. It is usually known to your organization, your workplace. Okay, but and the third trade is the secondary trade, which is the list यानी ये तो उन्हीं लोगों को सिर्फ मालूम होगा जो आपके क्लोज वन है। Like it include what are your likes, what are your dislikes, तो ये चीजें, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, व्हाट इज योर वीकनेस, तो ये सारी चीजें सेकेंडरी ट्रेड में आएंगी। ये उन लोगों को मालूम होगा जो आपके बहुत क्लोज वन है, लाइक योर पेरेंट्स और एनी योर गार्जियन, ओके, योर चिल्ड्रन, उनको मालूम होगा सेकेंडरी ट्रेड्स। तो ऑलपोर्ट ने कहा पर्सन में 3 तरीके के ट्रेड्स होते हैं। कार्डिनल ट्रेड की बात उन्होंने कही, सेंट्रल ट्रेड की बात कही, सेकेंडरी ट्रेड की बात कही। कार्डिनल ट्रेड वो होते हैं जैसे समझ लीजिए वो इंटरनेशनल हो रहे हैं, और सेंट्रल जो हो रहे हैं वो नेशनल हो रहे हैं, और सेकेंडरी जो हो रहे हैं वो डिस्ट्रिक्ट हो रहे हैं। मीन्स स्केल जो है वो कम होता जाता है, इसका स्केल सबसे ज्यादा है, फिर इसका स्केल उससे कम है, और इसका स्केल उससे भी कम है। तो ये 3 तरीके के ट्रेड्स के बारे में ऑलपोर्ट ने बताया। इसके बाद आता है ऑलपोर्ट थ्योरी के बाद कैटल की थ्योरी। कैटल ने भी 2 तरीके के ट्रेड्स बताए, जैसे ऑलपोर्ट ने 3 टाइप ऑफ ट्रेड्स बताए, कैटल ने 2 टाइप ऑफ ट्रेड्स बताए। कैटल ने एक क्वेश्चनर भी पब्लिश किया था जिसका नाम था सिस्टीन पीएफ, यानी ये पर्सनालिटी के 16 फैक्टर्स को मेजर करता था। इट मेजर द 16 पर्सनालिटी फैक्टर। तो इन्होंने क्वेश्चनर भी दिया था विच मेजर द पर्सनालिटी, ठीक है। और बेसिकली ये जो टेक्निक यूज करते थे इन ऑर्डर टू स्टडी अबाउट एनीवन्स पर्सनालिटी इज फैक्टर एनालिसिस। ये इस टेक्निक का यूज करते थे किसी भी पर्सनालिटी को मेजर करने के लिए। इनका ये जो मेथड था वो था फैक्टर एनालिसिस। नाउ जो 2 ट्रेड्स की बात उन्होंने की वो था, एक था सरफेस ट्रेड एंड अनदर वन इज द सोर्स ट्रेड। सरफेस ट्रेड, सोर्स ट्रेड। आपको नाम से कुछ पता चल रहा है, जैसे सरफेस ट्रेड यानी ऐसे ट्रेड जो ऊपर से हैं, और सोर्स ट्रेड जिनका कोई रूट है। सोर्स ट्रेड आप कह सकते हैं दे आर नोन टू बी द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ पर्सनालिटी। ये बिल्डिंग ब्लॉक माना जाता है कि जैसे कोई बिल्डिंग है और जो बिल्डिंग जिस चीज पे खड़ी है, तो ये वो एस्पेक्ट है हमारे पर्सनालिटी के, ये वो ट्रेड हैं जिनसे बाकी ट्रेड्स बने हैं। तो सोर्स ट्रेड हमारी पर्सनालिटी का मेन एस्पेक्ट है और ये नहीं चेंज होता, ऑब्वियसली ये नीचे रहता है, तो कभी इसके ऊपर बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक टाइम के साथ, सिचुएशन के साथ, लोगों से इंटरेक्ट करने के साथ वो बनते जाते हैं। ओके, तो दैट इज नोन एज द सरफेस ट्रेड। ये ऊपर में होते हैं, ये शैलो लेवल पे होते हैं, और ये जो होते हैं ये डीप लेवल पे होते हैं, ठीक है। ये सोर्स ट्रेड है वो इनसाइड में होता है, इट इजली डजंट चेंज। तो ये थी कैटल की थ्योरी। इसके बाद द लास्ट वन जो ट्रेड में आएगा आपको पढ़ना है वो है आइजन। आइजन ने भी एक क्वेश्चनर दिया था जैसे कि कैटल ने दिया था पर्सनालिटी को मेजर करने के लिए। इनका पूरा नाम था H.J. आइजन। इसी तरह इन्होंने भी दिया था, वो था EPQ, जिसका फुल फॉर्म था आइजन पर्सनालिटी क्वेश्चनर। ये मेजर करता था 3 डायमेंशंस को। यही 3 डायमेंशंस को H.J. आइजन ने अपनी थ्योरी में भी डिस्कस किया है।
इसमें सबसे पहला है न्यूरोटिसिज्म वर्सेस इमोशनल स्टेबिलिटी। सेकेंड है इंट्रावर्जन वर्सेस एक्सट्रावर्जन। ये इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट से डिराइव हुआ है, ठीक है। थर्ड है साइकोटिसिज्म वर्सेस सोशिएबिलिटी। ये 3 डायमेंशंस की बात और 3 डायमेंशन यू कैन से 3 टाइप्स ऑफ ट्रेट्स की बात आइजन ने की अपनी थ्योरी में। न्यूरोटिसिज्म को इमोशनली अनस्टेबल भी कहते हैं। न्यूरोटिसिज्म इज ऑल्सो नोन एज इमोशनली अनस्टेबल। तो ये इमोशनली अनस्टेबल वर्सेस इमोशनली स्टेबल, और इसको अनसोशिएबल भी कहते थे, तो अनसोशिएबल वर्सेस सोशिएबल। तो ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसमें पर्सन एक एंड में इमोशनली अनस्टेबल होते हैं, लाइक बहुत ही मूडी होते हैं, टची होते हैं, रेस्टलेस होते हैं, क्विकली लूज कंट्रोल होते हैं। और जस्ट अपोजिट इनके जो होते हैं वो बहुत ही काम डाउन होते हैं, अपने इम्पल्सेस पे उनका कंट्रोल्ड होता है। तो ये बहुत ही अपोजिट होते हैं न्यूरोटिक के। वही इंट्रावर्जन एक्सट्रावर्जन के साथ भी है, आपने पढ़ा अभी इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, वही सेम कैरेक्टरिस्टिक्स इनके साथ है। साइकोटिसिज्म वाले जो होते हैं ऑब्वियसली सोशिएबल नहीं होते, आउटगोइंग नहीं होते, अनसोशिएबल होते हैं, काइंड ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर भी होता है। तो इनका जस्ट अपोजिट होता है सोशिएबल, यानी लोगों से मिलना जुलना पसंद होता है, रिलेट करना पसंद होता है। तो ये बेसिकली थी आइजन की थ्योरी। तो ओवरऑल चिल्ड्रन वी डिस्कस अबाउट द टाइप एंड ट्रेट अप्रोच टू द स्टडी ऑफ पर्सनैलिटी। I just suggest you keep watching the video. If you feel any doubt, ask in the classroom. Thank you so much for carefully observing this one.